मिशन सजाओ, नया इतिहास बनाओ। भीम का मिशन सजाओ, नया इतिहास बनाओ। बहुजन समाज पार्टीના મિશનને મજબૂત કરવા માટે આ મહાન યોદ્ધાઓ बहुजन समाज પાર્ટીના પદાધિકારીઓ આજની આ માસિક મિટિંગમાં અમદાવાદ ખાતે પોતાના કાર્યાલયમાં આજે ઉપસ્થિત થયા છે અને बहुजन समाज પાર્ટીને મજબૂત કરવા માટે આ યોદ્ધાઓ પોતાનું પરિવાર છોડીને, પોતાનો અંગત સ્વાર્થ છોડીને આ મિશનને મદદ કરવા કાર્યરત કરી રહ્યા છે। સાથીઓ, આવા વીરાઓને આપણે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ છીએ। भीम का मिशन सजाओ, नया इतिहास बनाओ। भीम का मिशन सजाओ, नया इतिहास बनाओ। मिलके लगाओ नारा, है भारत की मजबूरी। मिलके लगाओ नारा, है भारत की मजबूरी। पीएम बनेगी शेरनी बहना, सबके लिए है जरूरी। पीएम बनेगी शेरनी बहना, सबके लिए है जरूरी। कब्जा कर लो इक़्तिदार पर, कब्जा कर लो इक़्तिदार पर। मिला है ये अधिकार। भीम का मिशन सजाओ, नया इतिहास बनाओ। भीम का मिशन सजाओ, नया इतिहास बनाओ। परचम हाथ में लेकर निकल पड़ा है सर्वजन। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल સાથે અનેક પ્રદેશના પ્રભારી રહી ચૂક્યા છે। તેમના આગામી ગુજરાત પ્રદેશના પ્રભારી તરીકે યુવા માન્ય સંસાર બાબુ છે। સાથે ગુજરાત પ્રદેશના પ્રભારી માન્ય बहुजन समाज पार्टीના નવા નિમણૂક પામેલા કેન્દ્રીય પ્રભારી માન્યવર ધર્મવીર અશોક સાહેબનું સ્વાગત કરતા માન્યવર રમેશભાઈ પટેલ, बहुजन समाज पार्टी गुजरात राज्य महासचिव। बहुजन समाज पार्टीના કેન્દ્રીય પ્રભારી માન્યવર સુરેન્દ્રસિંહ કલોરિયા સાહેબનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને સાથે સાથે बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष गुजरात राज्यના માન્યવર શ્રી ભગુભાઈ પરમારનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। ત્યારબાદ बहुजन समाज पार्टी गुजरात राज्यના ઉપાધ્યક્ષ માન્યવર ધોળાભાઈ ભાભોરનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું।
બહુજન સમાજ પાર્ટી મધ્ય ઝોનના પ્રભારી માનનીય શ્રી અંબેલાલભાઈ ચૌહાણનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. બહુજન સમાજ પાર્ટીના દક્ષિણ ગુજરાત ઝોનના પ્રભારી માન્યવર રતુભાઈ ઠાકરિયાનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. બહુજન સમાજ પાર્ટી સૌરાષ્ટ્ર ઝોનના પ્રભારી માન્યવર સુરેશચંદ્ર પરમારનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. બહુજન સમાજ પાર્ટી ઉત્તર ગુજરાતના પ્રભારી માન્યવર મહેન્દ્રભાઈ સોલંકીનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. બહુજન સમાજ પાર્ટી ગુજરાત રાજ્યના મહાસચિવ માન્યવર BM મકવાણા સાહેબનું પણ સ્વાગત કરવામાં. ગુજરાત રાજ્યના પુરાના બહુજન સમાજ પાર્ટીના અધ્યક્ષ એવા જજશ્રી સાહેબ કનુભાઈ વ્યાસનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. બહુજન સમાજ પાર્ટીના પ્રભારી દાદરાનગર હવેલી અને દીવ દમણના માન્યવર પ્રભાકર રાજભરનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. બહુજન સમાજ પાર્ટીની આજની આ માસિક મિટિંગમાં બહુજન સમાજ પાર્ટીના મહાનુભાવોએ પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા. બહુજન સમાજ પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશના મહાસચિવ માન્યવર BM મકવાણા સાહેબે પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા. બહુજન સમાજ પાર્ટી ઉત્તર ગુજરાત ઝોનના પ્રભારી એવા માન્યવર શ્રી મહેન્દ્રભાઈ સોલંકી સાહેબ પોતાના વિચારો દર્શાવી રહ્યા છે. બહુજન સમાજ પાર્ટી સૌરાષ્ટ્ર ઝોનના પ્રભારી માન્યવર સુરેશચંદ્ર પરમાર પોતાના વિચારો દર્શાવી રહ્યા છે. બહુજન સમાજ પાર્ટી દક્ષિણ ગુજરાત ઝોનના પ્રભારી માન્યવર રતિલાલભાઈ ઠાકરિયા પોતાના વિચારો દર્શાવી રહ્યા છે. બહુજન સમાજ પાર્ટી મધ્ય ઝોનના પ્રભારી માન્યવર મહેન્દ્રભાઈ સોલંકી પોતાના વિચારો દર્શાવી રહ્યા છે. બહુજન સમાજ પાર્ટીના ઉપાધ્યક્ષ માન્યવર ધુળાભાઈ ભાભોર પણ પોતાના વિચારો શ્રોતાજનોને સંબોધી રહ્યા છે. આજની આ મિટિંગમાં બહુજન સમાજ પાર્ટીના અધ્યક્ષ એવા ભગુભાઈ પરમાર સાહેબ પણ પોતાના વિચારો બહુજન સમાજ પાર્ટીના પદાધિકારીઓને દર્શાવી રહ્યા છે. બહુજન સમાજ પાર્ટીના કેન્દ્રીય પ્રભારી એવા માન્યવર શ્રી સુરેન્દ્રસિંહ કલોડિયા સાહેબ પોતાના વિચારો દર્શાવી રહ્યા છે. भारतीय संविधान में इस महापुरुष की आज जन्म जयंती और संविधान को करते हुए बहुजन समाज पार्टी के समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी नेता मानते हुए गुजरात प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की मासिक बैठक के अंदर आज के इस मीटिंग के मुख्य अतिथि देश के लगभग सभी राज्यों में कोऑर्डिनेटर रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री, 2 बार MLC रहे और गुजरात प्रदेश में तीसरी बार यहाँ आने पर उनका मैं हार्दिक रूप से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ. जिसके साथ मुझे भी दिल्ली, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल में भी साथ में काम करने का मौका मिला और साथ ही साथ आज इससे पहले भी गुजरात में हम लोगों ने साथ में काम किया है. उनके मार्गदर्शन में उनके अनुभव का फायदा गुजरात में लोग उठाएंगे ऐसा मेरा आप लोगों पर भरोसा है. साथियों, आज की मीटिंग के अंदर उपस्थित हमारे प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष भगुभाई परमार जी, उपाध्यक्ष
हमारे आदिवासी लीडर रिटायर्ड रेलवे से सीनियर सबसे इंजीनियर से रिटायर्ड भाई भोला भाई जी, हमारे बीच में हमारे सेंट्रल जोन के इंचार्ज और प्रदेश के प्रभारी AM चौहान जी जो रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। हमारे बीच में हमारे सौराष्ट्र जोन के इंचार्ज श्री SM परमार जी जो भी IAS अधिकारी रिटायर्ड हैं। हमारे उत्तर गुजरात के जोन के इंचार्ज रविंद्र सोलंकी जी जो RIC से रिटायर्ड अधिकारी हैं। हमारे जो साउथ गुजरात के इंचार्ज और कोऑर्डिनेटर हमारे पुराने साथी लक्ष्य पार्टी के लिए सबसे काम कर रहे हमारे आदिवासी नेता रविंद्र हमारे बीच में आनंद से चल कर आ रहे हमारे प्रदेश के भाजपा के लखौना साहब जज साहब हमारे बीच में सिलवासा से आए हैं। हमारे साथी हमारे यहाँ पर शांत करने आनंद से आए हमारे बहुत स्वागत करने हमारे बहुत पुराने साथी केशव भाई चौहान जो कार्यालय में रहते थे आज वो यहाँ पर अपना वैसे तो खूबसूरत गुजरात में हमारे रहे लेकिन गुजरात में अपनी मीडिया को कवरेज करते हैं। हमारे बीच में नवसारी से हमारे बीच में प्रदेश में बात होती है जो बैंक से अधिकारी से रिटायर्ड है हमारे बीच में एक पात्र हमारी बहन बनी जो माननीय जिला जज हैं आज के कार्यक्रम का संचालन और आज सभी साथी को सबसे पहले मैं आप लोगों को जो 16 तारीख को वोटिंग हुई और 18 तारीख को काउंटिंग में बहुजन समाज पार्टी 20 उम्मीदवार को चुनाव में सत्ता से जीते उनका आप सब लोगों ने किसी न किसी प्रकार से किसी प्रकार से सबने मेहनत करके 19 लोगों को जिताया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूँ और जो साथी जीते उनको शुभकामनाएं और बहुत सारे लोग चुनाव लड़े मजबूती से चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों ये 19 लोगों को जीते अभी हम लोगों ने मीडिया में पूरे देश में ये खबर मिल गया है कि बहुजन समाज पार्टी गुजरात प्रदेश मेरे में ऐसा कोई स्टेट नहीं जहाँ से वोट नहीं आया पूरे भारत में ये गया कि गुजरात में बहुजन समाज पार्टी विकट परिस्थिति में भी सीखी कि पहले भी जीते थे पहले तो हमारी यूपी में 4 बार सरकार ने वो बहुत लेकिन आज लेकिन विकट परिस्थिति में 19 लोग जीते ये बहुत बड़ी बात है। साथियों दूसरी बात ये कहना चाहूँगा ये चुनाव का जो परिणाम है देखो कि जैसे खेड़ा हमारा जो नगर पालिका है वहाँ हमारे 5 सीट आई है वहाँ कांग्रेस की 1 सीट आई है बीएसपी की 5 सीट आई छोटा उदयपुर में बहुजन समाज पार्टी की 4 सीट आई है कांग्रेस की 1 सीट आई है मतलब कांग्रेस जैसी पार्टी को भी हमने पीछे छोड़ा है। मांगरोल में बहुजन समाज पार्टी की मेकर है हमारे उम्मीदवार जीते हुए इसलिए नहीं कि वो आज चुनाव प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रेशर होते तो ये लोग अपने हिसाब से है। बावड़ा में हमारा 1 उम्मीदवार जीता है बीजेपी 14 जीती है कांग्रेस 13 और 1 बीएसपी। इससे पहले बावड़ा में पहले 10 साल पहले ऐसे सिचुएशन हुई थी तब 4 का पैनल नहीं था 3 का पैनल होता तो 9 वार्ड में 27 लोग थे जिसमें 13 बीजेपी 13 कांग्रेस 1 बीएसपी। यही आदमी जीता इसी आदमी को मैंने बहुजन समाज पार्टी का 1 बार से जीता था उसको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन एक आदमी और हम कहीं गए नहीं थे कांग्रेस के प्रदेश के नेता हमारे सामने झंडा लेके आए थे कि हमें आपका समर्थन चाहिए तब हम साथियों वैसे तो शासक नगर पालिका के चुनाव लेकिन बाई उसमें ज़्यादा था बाई इलेक्शन ज़्यादा था। वैसे अगर पूरा देखा जाए तो 25 नगर पालिकाओं के चुनाव थे जिसमें 7 नगर पालिकाओं में बहुजन समाज पार्टी का हाथी 7 विधानसभा में घूमेगा 25 में से और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां हम थोड़े थोड़े वोट से हारे। 13 में एक आदमी हमारा 25 वोट से हार गया, एक आदमी 14 वोट से हार गया सीहोर में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं
बालासिनोर में 19 छोड़ से आ गया, बालासिनोर का भी हमारी वजह पर। तो ऐसा है आज ये जो मीटिंग के अंदर बताने का मेरा मकसद ये है कि बहुजन समाज पार्टी गुजरात में यहाँ पर पोटेंशियल है, लेकिन भाईचारा के आधार पर हमको यहाँ पर लोगों को एस सी और आदिवासी समाज को जोड़ने का काम करने की जरूरत है। हमारे बीच में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने पीड़ितों लोगों के बारे में चर्चा की कि फेसबुक पर व्हाट्सएप पर ये लिखते हैं और एक आदमी है तो 4-5 आईडी बना करके लिखता है। ऐसे 2-4 लोग हैं, 8-10 लोग गुजरात में जा रहे हैं, ये 2 लोग हैं जो दिखाते हैं कि माहौल को खराब करने की जरूरत यही नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी गुजरात में यहाँ पर हमारे लोगों में दुष्प्रचार लोगों में ये लगे अभी बीएसपी के अंदर बहुत सारे जो है दुष्प्रचार करने का काम करते हैं। उनके लिए मैं शेर कहना चाहूँगा, लहजे में बदतमीजी और चेहरे पे लगाम लिए फिरते हैं, लहजे में बदतमीजी और चेहरे पर लगाम लिए फिरते हैं, जिसके जूते खाते खराब है वो हमारा हिसाब नहीं। जो खुद उनकी स्थिति खराब है, जो खुद का करैक्टर खराब है, वो हमारी चिंता कर रहे हैं। हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं आपको। जवान करनी और दिल साफ रखता हूँ, जवान करनी और दिल साफ रखता हूँ, कौन कब कहाँ बदल गया सबका हिसाब रखता हूँ। गुजरात के बड़े ऐसे मैंने अपना बचपन और जवानी लगाई, मैं जानता हूँ हर जगह को जानता हूँ, एक आदमी को जानता हूँ कौन क्या कर सकता है, माइक्रो लेवल पर जानता हूँ। इसीलिए कुछ लोगों का दिल होती है कि हाँ अगर कलोरिया रहेगा तो चोरी नहीं होगी, इसलिए कुछ लोगों को दर्द है। मेरी जिम्मेदारी आदरणीय बेटी ने हमें यहाँ लगाया है कि ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और करते रहे। मानव कांशीराम साहब ने कहा था कि मैं तोड़ने वालों को चुनौती देता हूँ कि खूब तोड़ो, मैं खूब सब को जोड़ने की जिम्मेदारी है। साहब ने कहा था कि विरोधी को तुम्हें जितना तोड़ना तोड़ो, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ कि तुम तोड़ो, मैं जोड़ता रहूंगा। जोड़ते रहेंगे, तुम तोड़ो लेकिन हम जोड़ते रहेंगे और एक दिन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी गुजरात का अपना जो है बात आगे बढ़ती रहेगी। हार वो मानते हैं जो कमजोर होते हैं। हम तो पैदा ही उस समाज में हुए जिसकी कहानी हमेशा संघर्ष से बनी हुई है। हम तो पैदा ही हुए हैं कोई वहाँ हुए, संघर्ष करना हमारी कुदरत में है। इसलिए साथियों, हमारे बीच में हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेटर मुख्य प्रभारी माननीय अशोक साहब जो है आए हैं। उनका लंबा तजुर्बा है, मैंने बहुत नजदीकी से उनके साथ, मैं दिल्ली में उनके साथ जब साथ रहा, मैं कर्नाटक में भी लंबे अरसे तक उनके साथ रहा, मैं वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता, सिलीगुड़ी, इवन जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, बांग्लादेश के बॉर्डर तक हम लोग जाके वहाँ जहाँ पर तार लगी हुई है कि ये इंडिया है, उधर बांग्लादेश है। ऐसे बहुत सारी जगहों पर भी जाकर के हमने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है। गुजरात में मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो लोग ये आए हैं, आप लोग इन महापुरुषों के आंदोलन को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे। कुछ ही महीनों के बाद महानगर पालिका के चुनाव होंगे। अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर और अभी तो नवसारी, गांधीनगर, महसाना, पालनपुर और भी कुछ महानगर बन गए हैं। इन महानगरों के चुनाव होंगे, 6 महीने हमारे बीच में हैं। इन 6 महीनों में आप लोग एक एक महानगर को जिम्मेदारी ले लो और वह प्रदेश से आपके पास इतनी आती रहेगी, कोई ना कोई आता रहेगा। महानगरों में बजट जब लाएंगे तो आने वाले और जो चुनाव होंगे विधानसभा के लंबित बात 2027 की मैं नहीं करना चाहता। अभी तो यही लेसन है कि महान 20 साल का ही महानगर पालिका के अंदर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था देने का काम करेंगे। उसके पहले जो 29 तारीख को
आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुला करके एक नया स्ट्रक्चर कैसे काम करना है, कैसे गुजरात में पूरे देश में इस सिस्टम से काम करना है, वो सारी बातें हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय धर्मवीर सिंह अशोक साहब आपके सामने रखेंगे। इन्हीं सब बातों को बोले आप लोगों को बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। બહુજન સમાજ પાર્ટીને મજબૂત કરવા માટે કયા કયા પગલાં ભરવા જોઈએ તેમની રસપ્રદ માહિતી માન્યવર ધર્મવીર અશોક સાહેબ આપણને આપશે અને બહુજન સમાજ પાર્ટીને કઈ રીતે સંગઠિત કરીને શું પગલાં ભરવા તેની ઝીણવટભરી માહિતી તેમના આ ભાષણમાં તેઓ દર્શાવશે। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी संतों को महापुरुषों को नमन करते हुए साथ ही साथ भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पीएसपी के संस्थापक माननीय साहब नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज गुजरात प्रदेश की प्रदेश कमेटी और जिम्मेवार साथियों की आज की इस मीटिंग में हमारे साथ बैठे हुए हमारे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे होम इंचार्ज अतिलाल खटिया जी, जयमल सोलंकी जी, जयसन कुमार जी, हमारे चौहान साहब और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई परमार जी, साथ में दुर्गा भाई भाभोर जी उपाध्यक्ष हैं और इस मीटिंग में उपस्थित मेरे सभी जिम्मेवार बीजेपी और गवर्नमेंट साथीगण, पटना पाटना के जिलाध्यक्ष सबसे पहले एक सूचना देना चाहता हूँ कि आपके बीच में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश की एक और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर की घोषणा की है और उनका नाम है भाई भारद्वाज राठौड़ जी। मैं चाहूँगा स्वागत करें हमारा गुजरात को इधर देखेंगे, साथ ही इनके साथ भाई कैलाश पर भी इधर जोन इंचार्ज रहेंगे और आगे इनको भी अरे लगने दो, पहले क्या बोले गर्ग साहब लगने दो। आगे बढ़ो। साथियों, मैं यहाँ काफी आप लोगों के बीच में रह चुका हूँ। 2 बार यहाँ से ट्रांसफर भी हो चुका है, तीसरी बार आपके बीच में आया और पता नहीं कब चला जाऊँ, क्योंकि ये भी एक जैसे सरकार में
हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, अब ऊपर डीजीपी चाहे जिसको भी आईडी को तरफ चाहे करते हैं, कलेक्टर किसी को भी इधर से उधर उनकी तरफ भेज सकता है। तो ये आना और जाना ये तो हर किसी के साथ है, और मेरा किसी चीज से भी मोह नहीं है, लगाव नहीं, मेरा काम के प्रति लगाव है। मुझे जहाँ भी भेजा जाता है मैं वहाँ काम करता हूँ, और आपके यहाँ भी कोई जिला ऐसा नहीं है जो मैंने ना देखा हो। हर जिले में जाकर के रुक करके काम किया है, और अकेला गुजरात नहीं, पूरे देश में जहाँ कहीं भी लगाया वहाँ के जिलों के नाम मेरी जबान पर रहते हैं, क्योंकि मैं जाता हूँ तो अनुभव होता है, देखता हूँ, काम करता हूँ। पड़ोस में ही आपके राजस्थान है, उस समय 33 जिले थे, और वो सारे के सारे मेरी जबान पर आज भी है। अलवर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, पुरुषा, टोंक, करौली, फिरोजपुर, भरतपुर, यहाँ के भी मुझे याद है। कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई ये अतिशयोक्ति है। काम करेंगे तो याद होगा, काम नहीं करेंगे तो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। और मेरा कहना है कि आप हर व्यक्ति अपने बारे में सोचो, अपने बारे में मुझे क्या करना है। जबकि हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, वो निकम्मा है, वो नहीं कर रहा, उसने ये नुकसान कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। दूसरे के बारे में सोचते ही रह जाओगे और अपना समय बर्बाद करोगे। तुम्हारा समय बर्बाद ना हो, इसलिए आज फिर दोबारा समझा रहा हूं, अपने बारे में सोचो। अरे क्या सोचो, ये सोचो मैं गरीब क्यों हूँ, मैं कमजोर क्यों हूँ, मैं फेल क्यों हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ, मैंने धोखा क्यों खाया, मेरा शोषण क्यों हुआ, मेरी पिटाई क्यों हुई, मेरी लुटाई क्यों हुई। ये सबके ऊपर निर्भर करता है। किसी को किसी बात का दुख है, किसी को किसी बात का दुख है। बुद्ध ने दुख के बारे में ही सबको चेताया है कि इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है। किसी को किसी बात का दुख है, किसी को किसी बात का दुख है। और ये चार आर्य सत्यों में उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से समझा दिया। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा इस बात को स्वीकार करो, मैं दुखी हूं, मुझे दुख है। तुम तो स्वीकार ही नहीं करते। आप में से 99% लोग बीमार हैं, चल रहे हो, और किसी से भी पूछूं कैसे हाल चाल है, ठीक। कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मैं बीमार हूं। वो कब तक नहीं मानता अपने आप को बीमार, जब तक वो चारपाई पर न पड़ता। जब चारपाई पर पड़ जाता है तब कहता है मैं बीमार, तब कहता भी नहीं, सोचता है क्या बीमार हूं। जबकि हमें सोचना चाहिए। गरीबी को रोकते रहते हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। अरे प्रकृति ने आपको 2 हाथ और बुद्धि दी है, 2 पैर। क्यों हो तुम गरीब?
स्वीकार करो मुझे दुख है। दूसरा आर्य सत्य, ये ढूंढो इस दुख का कोई ना कोई कारण है, एक या अनेक। और हम कारण बाहर ढूंढते रहते हैं। उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे धोखा दिया। अरे वो तो करेगा, उसको फायदा हो रहा है, तुम कैसे रोको? उसको मत कोसो, अपने आप को तैयार करो कि जब ढूंढोगे तो उसका कारण खुद निकलोगे। मैं इसका स्वयं कारण हूं, कोई दूसरा नहीं है। जिस दिन मैं ये सोचना शुरू कर दूंगा कि मेरी पिटाई हुई क्यों, मेरी पिटाई हुई क्यों, मेरा शोषण हुआ क्यों, मैं गरीब क्यों हूं, मैं बीमार क्यों हूं, सारी समस्याएं एक शब्द में बुद्ध ने दी, दुख। और तीसरा आर्य सत्य निकल के आता है, कारण का निवारण है। कोई ऐसा कारण नहीं जिसका निवारण ना हो। गरीबी ऐसी बुराई नहीं है जो दूर ना हो, बीमारी ऐसी नहीं है जो दूर ना हो, शोषण ऐसा नहीं है जो दूर ना हो, पिटाई ऐसी नहीं है जो दूर ना हो। हर चीज दूर हो सकती है, उसका निवारण है। बुद्ध ने बहुत साफ साफ समझाया। क्यों रोते हो, क्यों चिल्लाते हो, उस कारण का निवारण करो। और निवारण का उन्होंने मार्ग बता दिया, चौथा आर्य सत्य। निवारण का मार्ग है, वो मार्ग कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों वाला, जो 3 भागों में बटा हुआ है। प्रज्ञाशील समाधि पहला है, सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। बहुत आसान चीज है। और धम्म को भी उन्होंने बड़े छोटे शब्दों में समझाया। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धाने शास्त्र। आज तक जितने भी बुद्ध हुए हैं, अकेले गौतम बुद्ध की बकौती नहीं कि वो ही बुद्ध बने हो, उनसे पहले भी बुद्ध बने थे, बाद में भी बुद्ध बने हैं। कबीर बुद्ध थे, रविदास बुद्ध थे, डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध थे, कांशीराम बुद्ध थे। जिन्हें ज्ञान हो जाए और सभी बुद्धों ने ये शिक्षा दी है, पाप कर्म करने से बचो, पुण्य कर्मों का संपादन करो, चित्त को निर्मल रखो। ये सभी बुद्धों की शिक्षा। अब पाप कर्म क्या है? 10 पाप कर्म है, ज्यादा नहीं है। 10 बुरे कर्म ही ने छोड़ दो। पहला बुरा कर्म है, मैं हिंसा नहीं करूंगा, यानी किसी के अकारण हत्या नहीं करूंगा, किसी का मन नहीं दुखाऊंगा। दूसरा है, मैं बगैर दिए हुए किसी की कोई चीज ग्रहण नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। तीसरा है, मैं दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझकर उसे स्वीकार करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा।
ये 3 शरीर के हैं, 4 वाणी के हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कटु शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। बहुत जल्दी उल्टी सीधी गाली दे जाते हैं। मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं बकवास की बातों में समय बर्बाद नहीं करूंगा। हम आपस में बात करते रहते हैं उल्टी सीधी, थोड़ी देर में बॉम्बे की बात, फिर कैलकाटा की बात, कोई रिजल्ट नहीं। और कहते हैं हमारे पास समय नहीं है साहब, ताश खेलते रहेंगे और कहते रहेंगे। ये जितने भी रिटायर्ड लोग हैं ना, रिटायर्ड, मैं तो इनको धन्यवाद दे रहा हूँ तो यहाँ बैठे हैं। नहीं तो ये रिटायर्ड लोग शाम को देखो पार्क में जा दुनिया ताश खेलने में मस्त रहते हैं। जो काय बात के पढ़े लिखे, काय बात के लिए जीवन में आए, या शाम को बैठेंगे दारू पीने के लिए। तो हमें बकवास के बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक मिनट कीमती है। जो समय की कदर नहीं करता, समय कभी उसकी कदर नहीं करता। अगर आपको कहीं तक पहुंचना है तो एक सेकंड, एक पल की कदर करो तो तुम्हारा उद्धार होगा। किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद आगे बढ़ जाओ। ये 4 है पानी के दुष्कर्म और 3 है मन के दुष्कर्म। लालच, हम लालच में फंस जाते हैं। अभी मोदी ने लालच ही तो दिया है। 2100 रुपए देंगे, 5000 देंगे, 2500 देंगे, 5 किलो राशन देंगे। जैसे कोई आदमी तालाब में जाता मछली पकड़ने के लिए, पकड़ नहीं पाता, हाँ तो हाथ से पकड़ता मछली हाथ में काबू में नहीं आती, दूसरी पे जोर लगाता है और वो लोहे का खाना दिया। आप बात नहीं करोगे, ये कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, अभी राजनीतिक बात शुरू होगी। पहले तुम्हें जीना सिखा। लिखते रहते हैं व्हाट्सएप पे ऐसा वैसा ऐसा, क्या है इसमें? हवा में घूमने से कोई फायदा होने वाला नहीं, जमीन पर चलना पड़ेगा। तो लोहे का कांटा तैयार करता, उसके ऊपर वो केंचुए का मांस लपेटता और धागा बांधता है पानी में। मछली सूंघती आती है, देख के आज तो बहुत बड़ा मांस मिल गया, मेरा पेट भर जाएगा। और जैसे ही वो उसे अपने मुंह में लेती है, उस मांस को खाने पाती, लोहे का कांटा गले में लग जाता है और जान जाती है। यही हाल इस देश के आज बहुजन समाज के लोग। मोदी ने कांटा फेंक दिया है केंचुए का मांस लपेट में और सब दौड़ रहे हैं। और वो भी हिंदू की बात करता है और वो खुद हिंदू नहीं है। अमित शाह हिंदू नहीं है, लेकिन वो हिंदू की बात करते हैं। और हम लोग इस हिंदू मुसलमानों से लड़ पड़ते हैं और ये पता नहीं है कि कल हमारा क्या हो, कोई नहीं। तो हम लालच के शिकार होते हैं। आपको पद ना मिले तो नाराज, आपकी कोई बात ना करे तो नाराज, आपको इधर ना बैठाए तो नाराज, आपको भाषण के लिए समय ना दे तो नाराज, छोटी छोटी बातों में नाराज। और व्यक्ति जो पीछे बैठा है वो वहां बैठ करके भी काम कर सकता है।
यहाँ बैठने की जरूरत, लेकिन तसल्ली नहीं है पीछे वाले को, ये तसल्ली नहीं है कि साहब मेरी कदर नहीं करेगी, कम से कम बीच में तो बिठा देते। बीच वाले को तसल्ली नहीं है, कम से कम मुझे आगे तो बिठा देते। आगे वाले को भी तसल्ली नहीं है, कम से कम इस लाइन में तो बिठा देते। इस लाइन में भी तसल्ली नहीं है, बीच वाली सीट चाहिए। ये जो है हमारा सोचना, ये हमको कहीं बात नहीं, हम उल्टा सोचते हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। और जो नेगेटिव सोचता है उसे दूनी ताकत लगानी पड़ती है, और जो पॉजिटिव सोचता है उसे सिंगल ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए आप लोग आज गुजरात के बारे में एक ही बात सोचो कि आज विषम परिस्थितियों में जो प्रदेश की जनता ने आपको रिजल्ट दिया है बीएसपी के लिए 25 नगर पंचायतों में चुनाव हुआ, 25 में से 7 नगर पंचायतों में रिजल्ट आया, थोड़ा आया ज्यादा आया। उन वोटर्स को धन्यवाद दो जिन्होंने बीएसपी को वोट देकर तुम्हारे लोगों को जिताया। और सबसे पहले जो उन क्षेत्र का जोन प्रभारी वो उन गांव में जाएगा जहां से वो जीत के आए हैं, और उन गांव में उनको बधाई देगा, धन्यवाद देगा, और कहेगा कि भाई अब आपको विधानसभा के चुनाव में इसी प्रकार मेहनत करनी है, आपको उम्मीदवार नहीं देखना, आपको हाथी देखना है। हाथी आपका उम्मीदवार है, हाथी जीतेगा तो तुम्हारा उम्मीदवार जीतेगा, और हाथी आएगा तो तुम्हारा उम्मीदवार हारेगा। इसलिए तुमको समझाना, ये तो मैंने आपको बताया कि आप लोग राजनीति करने से पहले जीवन जीना सीखें। अपने शरीर के लिए समय दो। हमारे मीटिंग संचालक भाई का नाम लिया, मेरा बोलेगा परमार जी, प्रदीप परमार जी, इस वक्त मुझसे मिले, मैंने इनसे कहा कि भाई आप अपने शरीर के बारे में जानिए, क्योंकि जल्दी जाग जाए तो अच्छा है, वरना तो 60 साल के बाद फिर शरीर में ऊर्जा नहीं रहती और वो बीमारी का मुकाबला नहीं कर पाता। 60 से पहले हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, ऊर्जा से ऊर्जा बनाना सीख जाओ, ऊर्जा को जलाना सीख जाओ, जल करके वो धुआं तैयार हो। क्या कहते हैं उसे, उसमें होता है वो कैलोरी, कैलोरी, कैलोरी तो जलाते तो हैं, कैलोरी है तो जलाते, लेकिन हम जला नहीं पाते। हम खाने का भी पता नहीं है। उसने कहा है सुबानु पसिंग विहरंतं इंद्रियो सुपतंग भोजना में मनोतन कुसितं हीन वीर्यं ये तंग पश्यन्ति बारो बारो जिस व्यक्ति को खाने के बारे में ज्ञान नहीं है, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, किस लिए खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, ये वकील लोग जानते हैं। इसी पे सारा केस मारा जाता है, कहाँ मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, किससे मारा, ऐसा ही नहीं। तो ये वहाँ लागू होता है, तो ये हमारे शरीर पे भी, आहार पे भी लागू होता है। खाना सीख जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे, तो फिर हम बहुत आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि एक दूसरे की बुराई करना बंद करो, अपने बारे में सोचना शुरू
सामने वाला करे न करे, बराबर वाला करे न करे, पीछे वाला करे न करे, मुझे करना। देखो परिणाम। और जो करता है उसी का नाम होता है, जो त्याग करता है, जो मेहनत करता है, जो कष्ट उठाता है, उसी का नाम होता है। और जिसका नाम होता है वो हमेशा अकेला चलता है। बुद्ध भी अकेले चले थे, दो नहीं चले थे उनके साथ, एक साथ दो नहीं चले थे। बाबा साहब भी अकेले चले, फूले भी अकेले चले, कांशीराम साहब भी अकेले चले। लेकिन कहा गया है मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मैं चलता गया और कारवां बढ़ गया। चलते तो देखो, सिर्फ आलोचना आलोचना, बुराई 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 बुराई, दूसरे के बारे में हर समय समय सोचना नहीं। अगर तुम्हें किसी में दिखाई दे रहा है कि ये योग्य नहीं है, तो उससे ज्यादा योग्य बन के देखो। 500 वाट का बल्ब जल रहा है, इसे बुझाओ मत, इसके बराबर में 1000 वाट का बल्ब जला दो, अपने आप तुम्हारा परिणाम तो बुझाने के चक्कर में लगे थे। इसे बुझाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ। किसी को हटाने से काम नहीं चलेगा, खुद को आगे बढ़ाने से काम चलेगा। और दुनिया में कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता, स्वयं बढ़ता है। आसानी से पूरी कर सकती है, लेकिन उसे ठीक करना बहुत जरूरी है। एक बार एक चित्रकार के यहाँ पर एक बच्चा आया, उसने कहा मैं भी चित्रकारी सीखूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं कर। जब 5-6 साल हो गए उसे करते करते और वो परफेक्ट हो गया, तो गुरु ने कहा कि जा भाई तू अपना कारोबार कर, खोल लगे। तो शिष्य ने सोचा कि मुझे गुरु जी पीछा तो नहीं छुड़ाएगा, टेस्ट। उसने 5 दिन मेहनत की और एक शानदार तोते का चित्र बनाया। और उसके नीचे लिखा, जो सज्जन इसे देखे और कहीं कोई कमी पाए तो कृपया निशान लगाए। कमी आया चौराहे पर, जो भी आए देखे, पंजे में खराबी, पेट में खराबी, आंख में खराबी, कान में खराबी, कोई जगह ऐसी नहीं बची शाम तक जो टोटल खराब ना हो। अब सामने शिष्य आया, उसने देखा मुझे बेकार है, देखो मैं एक टोटा बनाया सारे खराब है। तो पहुंचा गुरु जी, आप तो ये कह रहे थे मैं परफेक्ट हो गया, देखो ये तो सारा टोटा खराब है। क्या लिखा है? उन्होंने पढ़ा, बोला अच्छा तो 5 मिनट में मेरे सामने एक तोता बना। परफेक्ट तो खाई क्या, उसने बता दिया 5 मिनट में खड़े। इसके नीचे लिख, जो सज्जन इसे देखे और इसमें कहीं कोई कमी पाए तो कृपया करके ठीक करने लगा। जब निकल पानी आया, अब जो भी आए देखे, नीचे की लाइन पर है, मैं तो जानते ही नहीं, चलते यार शाम तक किसी ने उसको निशान सामने से आया। आज पास हो गया, अब उतार दिया गुरु जी। ये बताओ 5 दिन की मेहनत का तोता टेल, 5 मिनट की मेहनत का तोता पास। बेटा इस संसार में कमी निकालने वाले हैं, लेकिन कमियों को दूर करने वाले नहीं। जिस दिन कमी दूर करने वाले पैदा हो जाएंगे उस दिन कमियां नहीं। हम कमी बहुत जल्दी निकालते हैं, वो ऐसा हो ऐसा, लेकिन उसका त्याग नहीं देखते। भोले का त्याग नहीं देखते, बाबा साहब का त्याग नहीं देखते, कबीर का त्याग नहीं देखते, संत रविदास का त्याग नहीं देखते। जो लोग उनके बारे में नहीं जानते
चलते उनके बारे में सोचते हैं, इनका नाम कैसा हो। दूसरे लोग जो अधर्मी हैं, जो उनके समकक्ष नहीं है, उनके जीवन में भी कदम कदम पर बाधा है, लेकिन उन्होंने कभी परवाह नहीं। आज मुझे 45 साल हो गए साहब और बहन जी के संपर्क में आए। 5 मई 1980 को संपर्क में आया। उस दिन से लेके आज तक कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बन रहा है, मैंने कभी परवाह नहीं। साइकिल से, पैदल, स्कूटर से, 4 व्हीलर से, चैन से नहीं बैठा। 45 साल 1678 गांव है मेरे जिले में बुलंदशहर। एक गांव मेरे से अब मुझे कौन कैसा कर सकता, और हार जीत की भी परवाह नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये तो लगा हुआ है, द्वंद में जीवन जी रहा है। बुद्ध ने कहा है, उत्तस लोग धम्मे ही चित्तंगे सुने कम्मति अशोकन विजन केवल एक निमंगल। जो व्यक्ति इन 8 लोक धर्मों में, कौन से 8 लोक धर्म? सुख दुख, लाभ हानि, आर्थिक, सम्मान, अपमान। इन 8 लोक धर्मों में जिस व्यक्ति का चित्त कंपित नहीं होता, वो व्यक्ति सुख नहीं रहता है, विरज विमल रहता है और सुख का जीवन जीता है। और ये तो आना है। सुख है तो दुख भी आएगा, हार है तो जीत भी आएगी, सम्मान है तो अपमान भी आएगा। जो व्यक्ति सम्मान पाकर इतराता है, अपमान पाकर रोता है, उसका जीवन जीवन। और याद रख लेना, जो आएगा वो जाएगा। सुख आया है जाएगा, हार आई है जाएगी, जीत आई है जाएगी, सम्मान आया है जाएगा, अपमान आया है जाएगा। और जब दुख आता है तो आपको होश में लाता है, और जब जाता है तो आपको सुख देकर जाता है, और जैसे ही सुख आता है आपको बेहोश करता है। देख लेना, जब भी आपको सम्मान मिलेगा आप बेहोश हो जाओगे, और जब भी आपका अपमान होगा होश में आ जाओगे। इसलिए आज राजनीति करने से पहले आज अपने मन को पक्का कर लो कि मुझे कुछ मिले या ना, रिजल्ट आए या ना आए, हार हो या जीत, मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करना, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना। एक न एक दिन जरूर जीवन में बाहर किसी की मेहनत बेकार नहीं जाती। मेहनत हमेशा एक न एक दिन सम्मान मिलेगा। इसलिए अब आपको राजनीति में मैं शुरू करने जा रहा हूं। क्या करना है और क्यों करनी है राजनीति? राजनीति में सम्मान है, राजनीति में ताकत है, राजनीति में धन है, राजनीति में शोहरत है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, नौकरी है, बिजनेस है, खेती है, कोई भी है, वो सब पेट भरने के सौदा है। सिर्फ अपने लिए राजनीति सम्मान करना, राजनीति करनी है सम्मान के लिए करनी है। और बीएसपी ही आपको सम्मान दिला सकते हैं, इसके अलावा कोई और दूसरी पार्टी आपको सम्मान नहीं दिला सकती। बीएसपी आपका अपना घर है, गरीबों का घर है, कमजोरों का घर है। बीजेपी कांग्रेस ये तुम्हारे घर नहीं है, ये मनुवादियों के घर है, पूंजीपतियों के घर है, ताकतवर लोगों के घर है। पूंजीपति गरीब का शोषण करता है, ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता है। इसलिए आपको ये सोच करिए, मेरा घर है, इसका नुकसान नहीं होने दूंगा।
के लिए काम करूंगा। जिस दिन ये सोच लोगे ये मेरा घर है, इस दिन आपको कोई नुकसान नहीं। राजनीति में धन भी है, मैं जानता हूं, बड़ी प्रकार के अनुभव गरीबी क्या होती है। कुछ भी तो नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं। पिताजी से लड़ के आए, बाहर निकल और हम राजनीति में आए, एमएलसी बने, मिनिस्टर बने, जो भी आ रहा है बच्चों की मिठाई भी बोले इतने सारे मिठाई तो 100 रुपए की आ जाएगी। ये ताकत को पैसा मिलता है, कमजोर को पैसा ताकतवर बनो। ताकत राजनीति में है, सम्मान पाना है तो आपको राजनीति करनी पड़ेगी। और ये आसान काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं। सारी जिंदगी भर लगा रहे तो विकेट हो जाए और पास हो तो एक बार में पास हो। तो आपने बहुत दिन से राजनीति शुरू की है, बहुत सारे लोग जवानी दे चुके हैं, लेकिन जितना समय बचा है अगर उसका भी तुमने सही इस्तेमाल कर लिया तो जरूर सिर्फ आपको करना, बोलना नहीं है, करना है। हमको एक जीभ दी है, 2 कान दिए हैं, ज्यादा सुनो, ज्यादा बोलो मत। जो कम बोलता है और समय आने पे खूब बोलता है, ऐसी बात नहीं है। जब बुद्ध बोले हैं तो इतने बोले हैं कि कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता किताबें पढ़। और जब चुप रहे तो इतने चुप रहे कि दूसरा कोई चुप नहीं। इसलिए जब समय आए तो बोलो, समय नहीं तो बोलो। और शुभ बोलो, अच्छे बोलो, पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव मत। 29 जनवरी को बहन जी ने दिल्ली में मीटिंग की। उस मीटिंग में हमारे अध्यक्ष जी भी थे, उसने क्या बताया? अब मैं उसमें बताया था कि प्रदेश को अब लोकल स्तर पर कोई प्रभारी नहीं होगा, स्टेट कोऑर्डिनेटर नहीं। अब कौन होंगे? अब प्रदेश को जोन में बांटकर 4 जोन, 5 जोन, 6 जोन, 8 जोन, फिर सभी जितनी भी ज्यादा जिले हैं उसके हिसाब से आपको बनाना। जोन पर एक प्रभारी होगा, फिर उसके नीचे जिला अध्यक्ष और जिला कमेटी, प्रदेश की कमेटी तो अपने आप होगी, उसके नीचे जिला कमेटी होगी और जिले में जितनी विधानसभा है उतने जिला प्रभारी बनाए जाएंगे। हर विधानसभा पर एक जिला प्रभारी होगा जो अपनी विधानसभा को तैयार और वहां पर जाकर के सेक्टर कमेटी, पोलिंग बूथ की कमेटी तैयार करेगा और उनको मेंबर बनाएगा। और इसके लिए 2 महीने का समय मिल रहा है। एक विधानसभा 2 की जगह 3 महीने ले लो आप, 90 दिन होते हैं। अगर एक दिन में आपने 4 या 5 बूथ कमेटी बनाई तो आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। पहली 10 बजे, दूसरी
ठीक 12 बजे या 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, जितना भी समय को बांट करके 4 तो कम से कम आप बना सकते। तो जिला प्रभारी वहाँ के विधानसभा की कमेटी के साथ रोज एक सेक्टर में जाकर के पहले जैसे आपको जोन बनाए जाएंगे, वैसे ही जिले में विधानसभा स्तर पर जिला प्रभारी विधानसभा अध्यक्ष के साथ मिलकर विधानसभा को सेक्टरों में विभाजित करेगा। जैसे 200 पोलिंग बूथ हैं तो 10 पोलिंग बूथ का एक सेक्टर, तो 20 सेक्टर आपके हो गए। और 20 सेक्टर में एक सेक्टर को 2 दिन दोगे और 20 सेक्टर को 40 दिन हो गए। 1.5 महीने में तुम्हारा काम पूरा हुआ। फिर भी बढ़ा सकते हो। तो आप जो है एक सेक्टर में 10 पोलिंग बूथ पर 2 दिन में जाकर 5-5 पोलिंग बूथ की कमेटी बना सकता है और वो अपना काम पूरा कर सकता है। बहुत ही अच्छा सिस्टम है। काम करने वाले के लिए ठीक है और ना काम करने वाले के लिए क्योंकि आप लोग यदि राजनीति में आ रहे हो तो आपको प्रमुखता राजनीति को देनी पड़ेगी। फिर ये शादी, संस्कार, उत्सव, त्योहार, इन सबको अलग उठा के रखना पड़ेगा। कुछ नहीं, पहले मेरे लिए प्रथम ये राजनीति। जो समय की कीमत नहीं पहचानता, मैंने पहले कहा, समय उसकी कदर नहीं है। इसलिए अगर आपको राजनीति करनी है तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको राजनीति को देनी पड़ेगी। शादी में जाना है, नहीं जाना है, क्योंकि ये तो होता रहेगा, लेकिन ये काम अगर समय पे नहीं हुआ तो फिर आप आरोप लगाते रहोगे, टिकट गलत दे दिया, टिकट बेच दिया, टिकट ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन अगर तुमने एक विधानसभा को एक प्रभारी ने अपने विधानसभा अध्यक्ष के साथ काम करना शुरू कर दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसे कोई हरा नहीं। ठीक है, इस काम को करना। और एक विधानसभा ले लो, जो भी है जिला प्रभारी जो भी बनेंगे, अब आप तो यहाँ से ले जाओगे, अभी हम बैठेंगे नीचे, आप उसको बना दोगे। एक करते नहीं है कौन सा जिला कौन से जोन में आता है, कितने जिले? 33 जिले हैं, तो कितने हो जाएंगे? 7 चौक 28 या 8 रख लो, 8 चौक 32, तो 4 हो जाएंगे। और ज़्यादा बढ़ाने कर लो, आप कर लेना बैठेंगे नीचे। और जब वो जोन बन जाए तो फिर उसकी जिम्मेदारी देना कि भाई तुमको 8 जिले हैं तो 8 दिन में 8 जिले की कमेटी बनाकर तैयार करके लाना। जिला कमेटी होगी। और फिर उस जिले के जिलाध्यक्ष से कहो कि भाई हमें जितनी विधानसभाएं जिले में उतने प्रभारी के रूप में लोगों का नाम और उनको जिम्मेदारी दो कि वे तुम्हें इस विधानसभा का काम है। आप नीचे जब बैठे बैठे आप लोग नीचे तक आपका मोबाइल से संपर्क करो, विधानसभा अध्यक्ष से संपर्क करो, जिला प्रभारी से संपर्क करो। वो रोज रिपोर्ट देगा कि आज हमने इस पोलिंग बूथ पर काम किया, ये सेक्टर कमेटी बनाई, इधर बटर राजभर है, जिनको भी आप हो गए लाकर करोगे और जो ड्रोन के बारे में बनाएंगे उनको करोगे। और मैं
होगा और जितने जौन प्रभारी होंगे उनसे मैं रिपोर्ट लूंगा कि तुमने पिछले, आज के तारीख है 23, इसमें कितने बचे 5 और 12 उधर समझ लो, 12, 5, 17 दिन में आपने क्या काम किया है। मैं अभी जिले वालों से नहीं पूछूंगा, सिर्फ जौन प्रभारियों से पूछूंगा कि तुमने इन 12 दिनों में क्या किया, कितने जिलों की कमेटी तैयार हो गई, कितने जिला प्रभारी बन गए, और उसके बाद अगले महीने में फिर हम विधानसभा इस स्तर पर आप उनसे उम्मीद करोगे जिन्हें बना के आओगे, जिला प्रभारी और जिला कमेटी, उनसे तुम संपर्क में रहोगे, उनसे जवाब तलब करोगे कि बताओ तुमने क्या किया है अपनी विधानसभा में। ठीक है जी? उनको मेंबर भी बनाना है, मेंबरशिप का है, इन्हीं को देनी है मेंबरशिप, इन्हीं से लेनी। जो जोन प्रभारी है ये वैसे नहीं बांटते कि क्या करते, बल्कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को कहते देखो थोड़ी थोड़ी दे के आओ, पहले टेस्ट करो ये काम कुछ करेगा नहीं करेगा, तो कम से कम एक सेक्टर में 10 पोलिंग बूथ है, 10 पोलिंग बूथ के लिए दे आओ भाई, ये जो है अगर उसे ले आता है तो दोबारा उसको दे दीजिए। विधानसभाओं में आपको अभी से तैयारी में और हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई अभी सत्ता की लड़ाई नहीं है। सत्ता चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए? व्यवस्था और वर्गों के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 संविधान सभा की अंतिम बहस का जवाब देते हुए बात कही कि 26 जनवरी 1950 को जब इस देश का संविधान लागू होगा, उस दिन इस देश के नागरिक कोहरे विषम भरे माहौल में जीवन जी रहे होंगे। एक तरफ राजनीति में समानता होगी, 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वोट, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में लोग गैर बराबरी का जीवन जी रहे। सामाजिक क्षेत्र में एक व्यक्ति जाति के नाम पर बहुत बड़ा सम्मान पा रहा, वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति बहुत बड़ा अपमान सह रहा। जैसे जैसे जाति ऊपर को उठती जाती है, सम्मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे जाति नीचे को आती जाती है, जैसे जैसे अपमान। आर्थिक क्षेत्र में एक व्यक्ति खरबपति बनकर दुनिया में अपना डंका बजा रहा है, जो ऐसा आराम का जीवन जी रहा, वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति 2 वोट के लिए तड़प रहा। जब तक इस देश की सरकार इस देश की सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की गैर बराबरी में परिवर्तन करने के लिए कदम नहीं उठाती, इस देश की आजादी का कोई मतलब। और आज देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, क्या किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी प्रयास किया इस देश से जागरूकता समाप्त? क्या किसी प्रधानमंत्री ने कभी ये प्रयास किया कि इस देश से गरीबी दूर हो? नहीं। क्यों नहीं? इसलिए नहीं, अगर जातवाद समाप्त हो गया तो इनमें भाईचारा बन जाएगा, और आज नहीं तो कल ये घनश्याम साहब के नारे को समझ जाएंगे, बाबा साहब की बात को जान जाएंगे। कौन सी बात को? वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट इनका ज्यादा है, भाईचारा बन गया,
तो ये मालिक बन जाएंगे, हम नौकर हो जाएंगे। और यदि इनकी गरीबी दूर हो गई तो इनका ध्यान पेट से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा। ये सोचना शुरू कर देंगे सत्ता कैसे ले। इसलिए किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक देश से न गरीबी दूर करने का प्रयास किया, न जातपात को खत्म करने। इसी को परिवर्तन करने के लिए मानव कांशीराम साहब कि हमारी लड़ाई सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की, और उसके लिए हमें सत्ता चाहिए, क्योंकि बिना सत्ता के हम व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग चाहते हो कि बहुजन समाज पार्टी का रिजल्ट आए, तो कोई और नहीं आएगा करने के लिए, आप में से ही कुछ लोग निकले। सब नहीं किया करते, कुछ लोग ही होते हैं जो करते हैं। जब अकेले बाबा साहब संघर्ष कर सकते हैं, अकेले मानव कांशीराम साहब संघर्ष कर सकते हैं, तो हम में से क्यों नहीं कोई निकल सकता? हम निकल सकते हैं। दिल की तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, और दिल की तमन्ना झूठी है तो बढ़िया से बढ़िया बहाने भी करना है तो रास्ता क्लियर है, नहीं करना है तो टांग पकड़ के नहीं पकड़ना। और याद रखना, काम करने वाले का हमेशा विरोध होता है, जो काम नहीं करता उसका भी विरोध। तुम घर में बैठे कौन जाएगा तुम्हारा विरोध करने? अब एक बात बताओ, मैं इतने दिन घर पे था, किसी ने विरोध किया नहीं? किसी ने किया नहीं? अब मैं आया हूं, हो आते ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम काम की बात करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, काम करने वाले का काम करता, जो नहीं करता उसका विरोध। इसलिए काम करना शुरू करो, रोज की चिंता मत करो, जिन्हें टांग पर खींचना खींचने दो, तुम आगे बढ़ना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बात मैं हो गया आपको बैठे बैठे, और लगभग 3:30 होने जा रहे हैं। मेरा भी काम पूरा हो गया। अब जो कोई पॉइंट आ जाता है तो फिर मैं आ ही रहा हूँ 14 तारीख को। हाँ, और मेंटेनेंस, आज मैं आपसे इस ऑफिस को चलाने के लिए कुछ ना कुछ आप दे करके जाओगे, जो आपकी जेब में अपनी मर्जी से, मेरे कहने से नहीं। निकालो, जेब में हाथ डालो, निकालो, रखो या जाए। शुरुआत करो, कौन करेगा? है कोई? देखते हैं कौन शुरुआत करता है। हाँ, जो कुछ भी निकाल सकते, कोई जरूर नहीं है। बस आइए 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 आइए। जो भी कह रहे हैं मैं तो, लेकिन कुछ मिल रहा है। अब बहन जी के द्वारा केंद्रीय प्रभारी बनाए गए हैं भाई प्रभाकर राजभर जी, वो इसका समापन करेंगे।
આ સાથે મિત્રો આજની આ માસિક મિટિંગ અહીં સમાપ્ત થાય છે.